Good morning, students. Today we are going to study our ninth class first poem, The Road Not Taken. It has been composed by, I think, Robert Frost. Let me clear one thing. Robert Frost, okay. So, first paragraph is two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and we one traveler long I stood and looked down one far as I could to where it bent in the undergrowth. So we are going to discuss its first paragraph. You have to take your book and read it with me. So first line is two roads diverged in a yellow wood. Two roads means road. सपोज करिए आप कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे, और आपके सामने एक ऐसी रोड जा रही है जो कि फिर इस तरह हो जा रही है, ये ठीक. So you are standing at that point. आप यहाँ खड़े हैं, रोड इस तरह डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्स्ड हो रही है, ठीक है. ये आपने देखा होगा कभी. आगे की जो लाइन है वो ये है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. सपोज करिए यू आर स्टैंडिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड यू डू नॉट नो विच वे यू हैव टू चूज. So two roads are diverged in a yellow wood. First you have to understand what is the meaning of yellow wood. Yellow wood. So there are four seasons. First one is, कहीं से भी हम शुरू कर दें, गर्मी, समर, समर के बाद क्या आता है, विंटर, और समर और विंटर के बीच में आता है ऑटम. So this is the season of autumn, and all the green leaves of the wood means jungle. All the green leaves of the jungle is turning into the yellow. So that's why poet is called, this particular wood is yellow wood. And sorry, because you are standing at this point, you cannot travel both roads in one time. And be one traveler long I stood. And because I am a traveler, मैं चूंकि क्या हूँ, मैं एक यात्री हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे पता नहीं है कौन सा रास्ता चुनना है. तो as a traveler I have to stood and watch both road as soon as I could. मुझे यहाँ पर खड़े होके थोड़ा सा ये विचार करना पड़ेगा, मुझे एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि which road is suitable for me to where it bent in the underwood. बस मैं देख कहाँ सकता हूँ, यहाँ तक, यहाँ से भाई खड़े होके यहीं तक देख सकते हैं. कहाँ जा रही है ये नहीं पता, ये कहाँ जा रही है ये नहीं पता. This is the situation of the teenage boy. He does not know what kind of way she or he will choose for the betterment of his future or her future. So it is suggested by the teachers, it is suggested by the particular persons, your father, your mother, your parents, your guardians. So this is the explanation of the first paragraph. I am standing on a point where two roads are diverging in the wood, and sorry I could not travel both because I am a traveler. I have to long stood there, must examine both roads, and then after I have to choose one. Then we are taking our second paragraph. Second paragraph क्या है? कहाँ से कहाँ तक है? Then took the other से लेके आपका ये चला जाएगा कहाँ तक? About the same. About the same में आ गया आपका. Then took the other as just as fair and having perhaps a better claim. Then took the other means, अब जब उसने दोनों रोड देखी तो उसने ये देखा ये जो रोड है, ठीक है, ये
रोड एकदम क्लीन है, ठीक। दूसरी रोड कैसी है? ग्रासी, अच्छी सड़क है, तो भाई एक तो थोड़ी सी गंदगी पड़ी है, पत्ते पेड़ के टूटे पड़े हैं, और उस पत्ते इस तरह से टूटे पड़े हैं जैसे कि वहां पर कई सालों से कोई भी नहीं गया। सो I leave that road and I have took this road to travel and having perhaps the better ground because it was grassy and wanted wear. मैं उस रास्ते को चुनना चाहता हूँ जिसे कम लोगों ने चुना था या अभी तक किसी ने चुना ही नहीं है। Through though as far that the passing there had warned that really about the same. चलना शुरू करेंगे या इस पे चलना शुरू करेंगे, शुरुआत में दोनों एक जैसे ही लगेंगे। And both that morning, अब ये आपका थर्ड पैराग्राफ है, both that morning equally late, लास्ट में है ever come back. Had warned them all and both that morning equally late in leaves no step had trodden back. Oh, I kept the first for the another day, yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. तो ये कहता है थर्ड पैराग्राफ की 4 लाइनों में कि उस सुबह तक इस रोड पे कोई भी चल के नहीं गया था। मतलब उस सुबह यानी कि आप जब पहुंचे, देखिए ज़िंदगी जो होती है, जो लाइफ होती है, आपकी लाइफ की रोड आप ही चलोगे उसको, बट रास्ते सेम होते हैं दूसरे की लाइफ में, तीसरे की लाइफ में। सपोज करिए एक बच्चा जो कि बायो लेता है, तो उसका फेट डिस्क्राइब हो गया या डेस्टाइंड हो गया कि वो बायो में उसके बनेगा, फील्ड वो अपनी क्लियर करेगा। जिसने मैथ्स ले ली वो मैथ्स में जाएगा, जिसने ह्यूमैनिटी ले ली वो उसमें जाएगा, जिसने कॉमर्स ले ली वो उसमें जाएगा। तो उसने कहा कि ये रोड मैं चुनूंगा, ये रोड मैं किसी और दिन के लिए रखूंगा, बट इसके साथ वो ये भी कहता है ये आई नो कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये आगे फिर कई रास्तों में बढ़ते हैं और वापस इस रोड पे आना लगभग नामुमकिन होगा। इसलिए जब भी हमें कोई रास्ता चुनना हो चाहिए तो बहुत ही ध्यान से चुनना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ, आई शैल बी ट्रेवलिंग दिस विद अ साइज समवेयर एजेस एंड एजेस, हेंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। अब जब हम इस रास्ते को चुन के आगे बढ़ते चले जाएंगे, वी आर गोइंग अपवर्ड्स एंड अपवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, फिर पीछे से कोई वहाँ पे आएगा, फिर वो इस रास्ते को चुनेगा। तो जब हम आगे जाएंगे और मान लीजिए कि बायो का बच्चा आगे 10 साल बाद कहाँ पे होगा, मैथ का कहाँ पे होगा, आफ्टर 10 ईयर वो अपना फेट डिस्क्राइब कर लेगा। मीन्स आफ्टर 10 ईयर्स द डिफरेंस बिटवीन अ बायो एस्पिरेंट एंड द मैथ एस्पिरेंट हैज बीन डिसाइडेड बिकॉज ही हैड चूजन अ पर्टिकुलर वे एट दिस पॉइंट। जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं हमारे या किसी और की डेस्टिनी में, कंडीशन में, फिजिकल या मेंटल एबिलिटी में, वो इसीलिए होते हैं कि हम आज के दिन कौन रास्ता चुन रहे हैं तो भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। अब इसके लिए होमवर्क आपका रहेगा, आप इसकी समरी लिखेंगे लेसन की एंड सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।